Hello student, in today's class we are going to discuss about what is electronics, application of electronics, electron emission and types of electron emission. At, at the end of the class you will be able to understand definition of electronics and its application, how electron emission takes place and types of electron emission and their working. Now let's start from what is electronics. Electronics is a branch of engineering which deals with the current conduction, means flow of current through vacuum or gas or semiconductor. There are various functions that electronics devices perform. First one is the rectification. The conversion of AC into DC is called the rectification. Here is the diagram. This one is the AC signal which will converted by the electronics device that is called rectifier that converts into the DC. That is not the pure form of DC. अगर हम लोगों को एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना है तब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज़ करते हैं. उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टिफायर. और उस प्रोसेस को बोलेंगे रेक्टिफिकेशन. एंड सेकेंड वन इज द एम्प्लीफिकेशन. देयर इज द सिग्नल, weak signal, that is the weak signal. There is the electronics device that convert the weak signal into a strong signal. The process of raising the strength of a weak signal is known as amplification. अगर हम लोगों को एक weak signal को convert करना है strong signal में तब हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज़ करते हैं जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिफायर, और उस प्रोसेस को बोलेंगे एम्प्लीफिकेशन. रेक्टिफायर नहीं, एम्पलीफायर यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस find wide application in automatic control. For example, speed of a motor, voltage across refrigerator. मतलब हम लोग को जहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस. जैसे कि फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में हम लोग क्या करते हैं? स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए. उस केस में हम लोगों का क्या यूज़ होगा? कंट्रोल. Fourth one is the generation. Electronics device can convert DC power into AC power of any frequency. This function is known as oscillator. मतलब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा ना, अगर DC पावर को कन्वर्ट करना है हम लोगों को AC में, तब हम लोगों का जनरेशन यूज़ होगा. जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होगा उसको हम लोग ऑसिलेटर बोलेंगे, जो कि हम लोग ऑसिलेटर क्लास में समझेंगे आगे. फिफ्थ वन इज कन्वर्शन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कैन कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. द कन्वर्शन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिसिटी. फोटो इलेक्ट्रिक्स डिवाइसेस burglar alarm that produces a loud sound alarm. Next one is sound recording or motion picture, etc. Last one is the conversion of electricity into light. Electronics device can convert electricity into light. This is used in television and radar. Application of electronics. Consumer electronics. Consumer electronics or home electronics are the devices used in homes like smartphone, smart TV,
audio system for home entertainment, refrigerator, vacuum cleaner, etc. Examples of communications are radio, TV broadcasting, etc. Information processing, which are used for solving the technical problem that the electronic equipment with the images acquisition function, like a computer information processor, process information to create clear and predictable result. In medicine and research field, electronics uses as X-ray machine, ECG machine, many hearing impaired people depend on hearing aids to electrically amplify sound waves. Next one is computer. Electronics instrument provides scientists and other researchers with powerful tools to better understand their area of study. For example, computer to help scientists to design new drug molecule, track weather system, and test theories about how galaxies and stars develop. Automation such as refrigerator, washing machine, toaster, etc. Last one is the instrumentation like CRO, multimeter, strain gauge, frequency counter are used in different laboratory and organization. Now, what is electron emission? Electron emission. The liberation of electron from the surface of a substance is known as electron emission. Consider an metal. सपोज हम लोग मेटल एक कंसिडर करते हैं. मेटल में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है. हम लोग मेटल यहाँ पे क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा होता है. अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी मिलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को छोड़ करके इमिट हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलेंगे. सपोज कंसिडर एन सोडियम Na, atomic number of sodium is 11 and electronic configuration is 2, 8, 1. ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम. मिडिल वन इज द न्यूक्लियस. फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन 2, सेकेंड 8 एंड थर्ड वन इज द 1. अगर ये लास्ट ऑर्बिट जो कि लूजली अटैच्ड होता है सोडियम के साथ, तो अगर मुझे ये सफिशिएंट एनर्जी मिल जाता है तो करता है अपने ऑर्बिट को छोड़ करके एमिट हो जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन. द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट of an atom are known as valence electron. The valence electron which are loosely attached to the nucleus are known as free electrons. There are 4 types of electron emission. First is thermionic emission, field emission, secondary emission, photoelectric emission. Thermionic emission. The process of electron emission from a metal surface by supplying thermal energy to it is known as thermionic emission. इसमें क्या होता है ना, हम लोगों का एक मेटल है, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है
फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए सो दैट वो एमिट हो सके। तो वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा? और सफिशिएंट एनर्जी को क्या बोलेंगे यहाँ? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वो वर्क फंक्शन मीन the amount of additional energy required to emit an electron from a metallic surface is known as work function of that metal। मतलब हम लोग को इलेक्ट्रॉन एमिट कराने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी जो लग रहा है, सफिशिएंट और एडिशनल एनर्जी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन बोलेंगे। तो थर्मियोनिक एमिशन में क्या होता है? मेटल के अंदर हम लोगों का क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि एमिट हो सके। तो वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ से मिलेगा? हम लोगों को इस मेटल में क्या करेंगे? हीट अप्लाई करेंगे। थर्मियोनिक नाम से पता चल रहा है, थर्मियोनिक मतलब हीट। तो हम लोग जब हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? हीट देंगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने सरफेस छोड़ करके एमिट होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? थर्मियोनिक एमिशन। The process of electron emission by the application of strong electric field at the surface of a metal is known as field emission। सपोज हमारे पास क्या है? एक मेटल है, उसमें क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सपोज ये हो गया पॉजिटिव फील्ड और ये हो गया नेगेटिव फील्ड। तो नेगेटिव फील्ड से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिपेल होगा, अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। अगर ये पॉजिटिव प्लेट से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है तो वो क्या करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने मेटल सरफेस को छोड़ करके एमिट हो जाएगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। यहाँ पे जबकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे फील्ड एमिशन। Secondary emission in electron emission from a metallic surface by bombardment of high speed electron or other particle is known as secondary emission। थर्मियोनिक एमिशन में क्या हो रहा था? अगर हम लोग मेटेलिक सरफेस में हीट अप्लाई कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने से वो एमिट हो जाता था अपने सरफेस से। तो उसमें क्या होता था ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता था। जैसे टंगस्टन, थोरिएटेड टंगस्टन ऑक्साइड कोटेड मेटल। अगर हम हीट अप्लाई कर रहे हैं और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, हीट जितना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उससे पहले ही अगर वो मेटल मेल्ट हो जा रहा है तो उस केस में हम लोग सेकेंडरी एमिशन यूज़ करते हैं। जैसे कि मेटल सरफेस है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म में बॉम्बार्डमेंट करेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉन सोर्स, जो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जो कि हम लोग बॉम्बार्डमेंट करेंगे मेटल सरफेस पे इन द फॉर्म ऑफ बीम, जो कि बीम होता है इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के। जब ये बॉम्बार्डमेंट होगा मेटल पे तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगा। तो जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा तो वो क्या करेगा? अपने सरफेस को एमिट्स कर देगा। किधर जाएगा? टुवर्ड्स द एनोड। ये इलेक्ट्रॉन के बीम से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करके एमिट किया जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एमिशन। Electron emission from metallic surface by the application of light is known as photoelectric emission।
सपोज यहाँ पे क्या है ना, हम लोगों का मेटल सरफेस है, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर लाइट सोर्स के थ्रू हम यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये जो लाइट सोर्स के थ्रू एनर्जी मिल रहा है उसमें क्या होता है ना, फोटोन्स होता है। तो वो फोटोन्स, हर एक फोटोन्स क्या करेगा, हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो वो जो एनर्जी मिल रहा है किस पे डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन पे। वर्क फंक्शन क्या है, जितना मिनिमम एनर्जी हम लोग को रिक्वायर्ड होता है टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्क फंक्शन। तो कितने फ्रीक्वेंसी में आना चाहिए लाइट, वो डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन पे। अगर सफिशेंट अमाउंट ऑफ मुझे एनर्जी मिल गया इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए, अगर उससे ज़्यादा एनर्जी मिलता है तो ना कि वो एमिट होगा, साथ ही साथ उसको इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ से फोटोन मिला इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल, तो वो क्या करेगा, अपने सरफेस से एमिट होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थैंक यू।